Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and we are discussing ring theory in fact. So integral domain we have taken in previous class. So today we'll discuss polynomial ring. Okay. And before that, I would like to congratulate all the aspirants who are now civil servant in fact, who made into the PDF in 2021. So we have in fact the mathematics result has been very good in fact, and uh, many now civil servants were associated with the Mathocrat channel or our YouTube Telegram community in fact. So we have Subhankar who has got 11th rank in fact in his very first attempt. He has 286 marks in mathematics, very good score in fact, 143 plus 143 he has. Okay, he has good score in fact across all the subjects. So there comes the importance of balancing as well. ठीक है, we have to be have good marks in essay and other GS paper as well. In fact, essay, ethics and optional अगर ये तीनों किसी की अच्छी है ना, तो उसके लिए जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी इनफैक्ट. ठीक है. अब जीएस में जैसे 1 2 3 है, उसमें अगर एवरेज मार्क्स से थोड़ा बहुत ऊपर भी आ रहा है और इनमें अच्छा कर दिया अगर किसी ने, तो वी विल गेट गुड रैंक. ठीक है. देन वी हैव दिलीप. वी हैव I think he has 306 marks in mathematics. 21st rank he has got. Uh, this was his second attempt, I guess. Okay, and he has also done very good. Then we have Utsav. He got 26th rank. This was his first attempt. Utsav also, I think, got 306 marks. Exactly, I'm not sure, but these marks are 300 plus. Okay, so this was first attempt for Utsav as well. So, and we have Soryaman, we have who has same rank as the marks in mathematics. Then we have Rahul who got 316 in mathematics, I think second or third highest. He has rank 377. Okay, and then we have Gagan. He also has I think 280 plus marks he has in mathematics. Then we have Neeraj. We have Jyoti. We have Sauli, Alphonse. And we have Subhansu, in fact, rank 90. We have Arpit, rank 54, and many more, in fact. So this was a good year for mathematics optional, in fact. So that should act as a moral booster for math optional aspirants. Okay, but the mehnat behind these marks, that should also be considered, in fact. ठीक है, क्योंकि अगर कोई न्यूली शुरू करेगा तो 7 8 मंथ तो उसको लगेंगे फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइम अगर कोर्स कंप्लीट करेगा, सो इतना टाइम तो उसको लगेगा. देन इन सब्सिक्वेंट इटरेशन इट विल डिक्रीज ऑफ कोर्स. सो वो चीज़ है. और देखो एक चीज़ ये है, जैसे कि मैंने फ्लूइड्स वगैरह या मैकेनिक्स जितने भी कराए वो सब मैंने PYQ को बैकग्राउंड में रख के ही कराया है. मीन्स PYQ एनालिसिस के बेस पे ही चीज़ें करवाई है. सो PYQ का इम्पोर्टेंस इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है. सो जितने भी टॉपिक है सबके PYQ स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 टिल 2022 21 इनफैक्ट इतना पोर्शन तो बनता है. ठीक है, ये तो कर लेना चाहिए. और फॉरेस्ट के भी इनफैक्ट फॉरेस्ट के भी एटलीस्ट 5 6 ईयर के तो कर लेना चाहिए, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओनली दोज पार्ट्स विच आर इन कॉमन विद ओनली दोज पार्ट्स ऑफ सिलेबस विच आर इन कॉमन विद सिविल सर्विस, वही वाले पोर्शन के PYQs वी हैव टू डू. ओके, so that's the thing. So let's see this ring theory. ठीक है. रिंग थ्योरी में पोलिनोमियल रिंग्स. सो अच्छा देखो, जैसे हम पोलिनोमियल्स पढ़ते थे बचपन में, सो वही चीज़ है बस. वही चीज़ का जो एक्सपेंडेड वर्जन, इनफैक्ट नॉट एग्जैक्टली दैट थिंग, पर उसमें जैसे ऑपरेशन करते थे वो वाले ऑपरेशंस की हेल्प से दिस थिंग विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. सो देखो पोलिनोमियल रिंग रिंग हमने देखी कि रिंग क्या होती है. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज. अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ रिंग. ठीक है. जैसे अगर रिंग को R से डिनोट करें तो R प्लस डॉट, ये दो जो है बाइनरी ऑपरेशन होते हैं इसमें. ठीक है. यहाँ पे प्लस एंड डॉट
in general we take these means addition and multiplication, but they may be defined in the question itself. जरूरी नहीं है कि इसका मतलब प्लस जो सिंपल a प्लस बी है वही हो, इसको कुछ और भी डिफाइन किया जा सकता है। मान लो a प्लस बी, इसको डिफाइन कर दिया एग्जाम जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको स्टार एक उससे भी डिनोट कर सकते हो। सो दिस ऑपरेशन में बी डिफाइंड in the question itself, ठीक है। but if it is not given otherwise we'll assume that this is a simple plus 2, ठीक है। सो ये है रिंग में। अब देखो पोलिनोमियल रिंग क्या होती है, बेसिकली रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर आर, ठीक है, वेयर आर इज ए रिंग, वेयर आर इज रिंग, या कम्यूटेटिव रिंग बोल दो इसको, इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ओके। सो या सो देखो इसमें अगर इसको जिससे अगर हमने आर से डिनोट किया है रिंग वाले पार्ट को, तो अगर आर एक्स जो है ये एक पोलिनोमियल रिंग जिसको बोलेंगे हम, या वी कैन से दिस इज ए रिंग और पोलिनोमियल्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज आर एक्स इज ए सेट। ऑफ कोर्स रिंग क्या होता है, एक सेट ही होता है जो कि कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, देन वी से ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है इनफैक्ट। सो व्हेन सर्टेन प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय दैट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, वो रिंग हो जाता है। सो ऐसे आर एक्स कैसे डिफाइन करेंगे हम, ए नोर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन एक्स पावर एन, वेयर ए नोर ए वन सो ऑन ए एन दीज ऑल आर एलिमेंट इन द रिंग आर, ठीक है। फर्दर इट इज वी कैन से दैट ए एन इज नॉट जीरो, ये इसलिए बोल रहे हैं ये एन कैन बी जीरो, एनीथिंग कैन बी जीरो इनफैक्ट, ठीक है। सो ये हो गया। सो ये चीज़ है। सो यहाँ पे देखो ये जो x है ये क्या है, दिस x इज बेसिकली इनडिटरमिनेट थिंग इन डिटर्मिनेट, ठीक है। सो x क्या काम कर रहा है यहाँ पे, x इज एक्टिंग एज ए प्लेस होल्डर, इट इज नॉट लाइक कि अननोन जो x पोलिनोमियल्स में होता है, ये यहाँ पे एज ए प्लेस होल्डर काम कर रहा है। प्लेस होल्डर इन द सेंस कि जैसे मान लो कोऑर्डिनेट मान लो ऐसा, कि अगर इसको एन ऑर्डर टपल मानेंगे तो क्या होगा, एन और ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ऐसा हो गया। तो इस टाइप का काम कर रहा है एक्स, ठीक है। सो ये चीज़ है। तो इस टाइप के जो इस टाइप जो ए एन और ए वन एन की वैल्यूज हम वेरी कराएंगे, तो ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे, तो उन सब के सेट्स के कॉम्बिनेशन से जो ये आर एक्स बन रहा है वो रिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑपरेशन जो कि हम डिफाइन करेंगे। सो ऑपरेशन क्या होंगे वो ऑपरेशन, पहला हो गया एडिशन। तो एडिशन क्या होगा, पॉलिनोमियल्स का एडिशन। देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि दिस आर एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ठीक है, वेर एन और ये हो गए। तो ऐसे ही वी कैन से कि एडिशन क्या होगा, अगर एफ एक्स एंड जी एक्स ये दो एलिमेंट है इन आर एक्स के अंदर, देन एडिशन इज डिफाइंड एज एफ एक्स प्लस जी एक्स, दिस विल बी डिफाइंड एज जो इस ये एलिमेंट जैसे मानो एन और प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए एन एक्स पावर एन है, और मान लो जी एक्स जो है वो ऐसा कुछ है बी नोर प्लस बी वन एक्स सो ऑन बी एम एक्स पावर एम है मान लो इस टाइप। तो इसमें एडिशन का मतलब ये होगा कि जो कोएफिशिएंट है, जैसे मान लो एक्स की पावर आर है, तो इनके जो दोनों कोएफिशिएंट है वो ऐड होंगे। जैसे एक्स की पावर आर इसमें यहाँ कहीं होगा मान लो, तो इसमें जो ए आर हो गया और इधर से बी आर आएगा। सो दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन एफ प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ प्लस जी एक्स, ओके। सो दिस इज द वे एडिशन ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स विल बी डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा भी हो सकता है, इसमें एन या एम कौन सा बड़ा है उस हिसाब से एडिशन होगा। जैसे मान लो कि एन जो है वो ग्रेटर देन एम है, तो एक्स की पावर एम पहले से ही रह जाएगी टर्म, उसके बाद में ये सब जीरो मानेंगे हम, जीरो इंटू एक्स की पावर एम प्लस वन एंड सो, ठीक है। लेट द दिस विल बी कंपोनेंट वाइज एडिशन ऑफ द लाइक कोएफिशिएंट इनफैक्ट, ठीक है। ऐसे वी कैन डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन एज वेल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स जैसे एफ और ये जी है, एफ एक्स एंड जी एक्स, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो एन और प्लस सोन एन एक्स की पावर एन ये है, और जी एक्स क्या है, बी नोर प्लस सोन बी एम एक्स की पावर एम है, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब इसको देखो ए नोर बी नोर, इसको इसमें क्या होगा कि वही है, जैसे जो इसमें एक्स की पावर जीरो हो गया, ऐसे एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, जैसे यहाँ ए वन एक्स है तो ए वन यहाँ लिख ही देते हैं, चलो ए वन एक्स है तो ए वन एक्स बी नोर से मल्टीप्लाई होगा तो ए वन बी नोर एक्स, प्लस यहाँ से यहाँ पे भी बी वन एक्स होगा, सो बी वन एक्स जब ए नोर से मल्टीप्लाई होगा मीन्स ए नोर बी वन, सो ये एक्स के कोएफिशिएंट हो गए एंड दिस वे, मतलब जो एक्स जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ऐसे वी कैन प्रूव कि जो आर एक्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस एंड डॉट दिस विल बी ए रिंग, ठीक है, दिस कैन बी सो। सो आई लीव दिस एज ए होमवर्क एज ए प्रैक्टिस इन फैक्ट। करना क्या है देखो, रिंग क्या होती है, पहले हमें आर एक्स प्लस जो है इसको एबिलियन ग्रुप शो करना है, एबिलियन ग्रुप है ये, वो दैट कैन बी शो इजीली, भाई सम तो यहीं से पता चल गया हमें कि सम इज क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, बिकॉज देखो अगर इसका जो सम किया था हमने वो क्या आया, इसका सम इस टाइप आएगा, समेशन आर बिलोंग्स टू लेट से एन, उस टाइप चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें ये डिफाइन भी रहेगा कि सर्टेन वैल्यू एम के बाद ये जीरो हो जाएंगे ऑप्शन, तो देखो इसमें बिकॉज ए आर आल्सो इन आर एंड बी आर इज आल्सो इन कैपिटल आर, so their sum will also be AR plus BR will also belongs to R because R is a ring, so closure will be satisfied, so that way every coefficient of x power R will be in R, so वहाँ से we can say that this F plus G will be in Rx, so similar way we can say कि associativity होगी because जो coefficient है वो associative तो Rx भी associative होगी। अब आइडेंटिटी की बात करें तो जीरो आइडेंटिटी होगी बिकॉज कोई भी हम लोग ये ले सकते हैं ना ओ एक्स, लेट अस डिफाइन दिस एज 0 प्लस 0x प्लस एंड सो ऑन, सो इसको किसी भी पॉलिनोमियल में ऐड कर दो, विल गेट दैट पॉलिनोमियल इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस 0 इज ए आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे एबिलियन तो होगा बिकॉज आर एबिल कोफिशिएंट जो है वो कम्यूट करेंगे, सो दैट वे आर एक्स विल आल्सो एबिलियन एंड दैट वे वी कैन सो, ऐसे ही सेमी ग्रुप होना चाहिए आर एक्स डॉट, रिंग होने के लिए ये सेमी ग्रुप होना चाहिए, तो दैट कैन आल्सो प्रूव एसोसिएटिविटी, तो सिंपल है, कोएफिशिएंट की एसोसिएटिविटी से वो डिसाइड हो जाएगी। रही बात मल्टीप्लिकेशन वाली में तो इसमें भी क्लोजर रहेगा, देखो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, सो ए नोर एंड बी नोर बोथ आर इन कैपिटल आर, तो देयर डॉट विल आल्सो बी कैपिटल आर बाय द properties of ring in capital R. Similar way we can say for every coefficient. So overall this fx dot gx will lie in capital Rx. ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज ये बोल सकते हैं कि if R is commutative ring with unity, then Rx will also be commutative ring with unity, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सो ये आसानी से प्रूव किया जा सकता है, कैसे, इसको अगर प्रूफ देखा जाए तो क्या होगा, देखो ये हमें गिवन है कि यूनिटी है आर में, और ये जो आर है वो कम्यूटेटिव रिंग भी है, सो हमें शो करना है कि आर एक्स जो होगी वो भी कम्यूटेटिव होगी, सो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स, ये कोई हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया आर एक्स में, देन वी हैव टू शो कि एफ एक्स जो है कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होगा कि एफ एक्स जी एक्स जो होता है दैट शुड बी इक्वल्स टू जी एक्स एफ एक्स, सो एफ एक्स देखो एफ एक्स को लेटर से हमने ये ले लिया ए आर एक्स पावर आर वेर आर वेरीज फ्रॉम जीरो से लेटर से एन हो गया, ऐसे ही जी एक्स को लेटर से आर वेरीज फ्रॉम जीरो से एन, बी एम एक्स की पावर या आर, यहाँ पे तो आर ही रखो, आर वेरी फ्रॉम जीरो से एन ये ले लिया, सो इनका मल्टीप्लिकेशन हमें देखना है, सो दिस कैन बी डन। देखो सिमिलर चीज़ें देखनी पड़ेगी इसमें, सो इसमें वही होगा ए नोर बी नोर प्लस ए वन बी नोर प्लस ए नोर बी वन एक्स
प्लस देखो इसका जो सम है वो जो जैसे जीरो टर्म्स है तो जीरो आना चाहिए, यहाँ पे सम 1 + 0 1 आना चाहिए, ऐसे हो जाएगा ये A1 B1 प्लस A2 B नोर प्लस A नोर B2, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, सो इस टाइप से होगा ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो हमें शो करना है कम्यूटेटिविटी, क्योंकि आर कम्यूटेटिव रिंग है, एस आर इज कम्यूटेटिव रिंग, सो ए नोर बी नोर इक्वल्स टू बी नोर ए नोर, एंड सबके लिए ऐसा बोल सकते हैं A1 B नोर प्लस ए नोर B1 इज नथिंग बट बी नोर A1 प्लस B1 ए नोर, एंड सो बिकॉज ये जितने भी कोफिशिएंट हैं यहाँ पे एफ एक्स के वो सब आर में ही हैं, बट आर इज कम्यूटेटिव तो ऐसा हो जाएगा। सो इससे वी कैन से दिस, अगर इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो देट विल बी नथिंग बट देट विल कम आउट टू बी जी एक्स डॉट एफ एक्स। भाई जी एक्स में क्या होगा, बस जी एक्स वाले जो कोफिशिएंट वो पहले हो जाएंगे, मीन्स यहाँ से बी नोर पहले हो जाएगा, बी नोर इंटू एन ओर, सो ये हो गया बी नोर इंटू एन ओर, जैसे ये बी नोर इंटू एन ओर एंड बी नोर A1 एंड सो आर एक्स इज कम्यूटेटिव रिंग। अब दूसरी चीज़ की, अगर मान लो यूनिटी है, इफ वन बिलोंग्स टू आर देन वन आल्सो बिलोंग्स टू आर एक्स, if capital R is a ring with unity then Rx will also be a ring with unity। ये भी प्रूव किया जा सकता है, कैसे, देखो let let us say कि A belongs to R, then A dot 1 equals to A, क्योंकि 1 जो है वो आइडेंटिटी है R में, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी वी कैन से दिस। ठीक है, अब देखो let fx and gx belongs to Rx एंड ई एक्स भी बोल दो, चलो ई एक्स बोल दो, एफ एक्स ई एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट एफ एक्स को जब ई एक्स से मल्टीप्लाई करें तो खुद एफ एक्स आ जाए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, या ई एक्स डॉट एफ एक्स कर लो, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से अगर इसमें देखो, अब इसमें ई एक्स को क्या करें कि एफ एक्स खुद दिया जाए, तो इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है इनफेक्ट, एफ एक्स ई एक्स को अगर 1 कर दें तो एफ एक्स ही आ जाएगा, ऐसे ही ई एक्स को 1 कर दें तो एफ एक्स आ जाएगा, सो ई एक्स इक्वल्स टू 1 इज आइडेंटिटी इन आर एक्स। ओके, या इसको एक्सपांड करके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो भी वही बात होनी है। ठीक है भाई, एफ एक्स क्या है, ए नोर प्लस A1 एक्स एंड सो ऑन, इसको ए एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको मान लो बी नोर प्लस B1 एक्स एंड सो ऑन कर लो, इसको वापस ए नोर प्लस A1 एक्स यही आना है। तो जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, जैसे पहला कांस्टेंट ही ले लो, सो दैट विल बी ए नोर बी नोर, इस शुड बी इक्वल्स टू ए नोर, इसका मतलब या तो बी नोट 0 है या ए नोट जो है, नहीं ए नोट 0 है या बी नोट 1 है। ठीक है, बट ए नोट इज नोट 0, ए नोट इज नोट 0, क्योंकि अगर ए नोट को 0 ले लेंगे और आगे वाली चीज़ें कंपेयर करेंगे तो ये पूरा का पूरा ट्रिवियल कंडीशन में जाएगा। जैसे ए नोट को अगर 0 ले लिया मान लो, तो सेकंड केस में क्या है, A1 बी नोट प्लस ए नोट B1 ये है, दिस शुड बी इक्वल्स टू A1, भाई एक्स का कोएफिशिएंट ये है, सो ये होना चाहिए, अगर बी ए नोट को 0 लिया है तो ये 0 हो जाएगा, सो यहाँ से क्या आएगा, या तो A1 0 या बी नोट 1 आ गया। तो फिर अगेन इसमें मान लो ए नोट A1 0 वाला केस लेंगे, तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एफ एक्स है हमारा वो ट्रिवियल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या ये कॉम्बिनेशन भी लेंगे, अगर ए नोट को 0 ले लिया मान लो, यहाँ पे बी नोट को 1 ले लिया। ठीक है, सो उस केस में भी जैसे अगर ए नोट को 0 लेते हैं, ए नोट जैसे 0 तो ये खत्म हो गया, और A1 बी नोट इक्वल्स टू A1, सो यहाँ से बी नोट को 1 ले लो, फिर वी हैव टू से कि A1 इज नॉट 0। ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो भी ये क्या होगा कि बी नोट 1 है, इसका मतलब 1 ही हो गया e की पावर x, आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें 0 होगी उसकी।
ओके, सो दिस वे वी कैन से कि जो इसकी आइडेंटिटी होगी वो 1 ही होगी। वैसे इन सब में पास नहीं है, वैसे यहीं से वी कैन से कि 1 सेटिस्फाई दिस कंडीशन, सो दिस विल बी एन आइडेंटिटी। ओके, सो ये है। अब इस पे क्या है कि अच्छा, एक चीज़ ये देख सकते हैं, इफ़ R is integral domain, then Rx will also be integral domain। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, पहली बात तो R इंटीग्रल डोमेन है, R इज इंटीग्रल डोमेन। इसका क्या मतलब होगा कि R जो है, R इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजर्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। तो हमें ये शो करना है कि जो आर एक्स होगा, आर एक्स क्या होता है, आर एक्स इज नथिंग बट ऑल दोज एफ एक्स जो कि जिनके की कोफिशिएंट जो होंगे, जैसे एन और प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, वेयर दीज कोफिशिएंट ए आई लाइज इन दिस आर, सो दिस इज द आर एक्स। तो हमें ये शो करना है कि ये भी इंटीग्रल डोमेन होगी। सो देखो, इसमें पहला पार्ट तो ये शो करना पड़ेगा कि आर एक्स जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है, सो देट आई हैव शोन, तो वही यूज़ करना है। दूसरा है कि आर एक्स जो है उसमें यूनिटी है, वो भी है, दैट आल्सो वी हैव सीन। सो दोनों पार्ट, दो तो पार्ट हो गए। अभी हमें शो करना है कि विदाउट जीरो डिविजन है, सो दैट कैन आल्सो बी शो। ठीक है, लेट एफ एक्स जो है, मान लो ये हमारे पास एन और प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए एन एक्स पावर एन हो गया। ठीक है, ऐसे जी एक्स है, मान लो वो बी नोर प्लस बी वन एक्स एंड सो ऑन प्लस बी एम एक्स पावर एन हो गया, वेयर ए एन इज नॉट जीरो एंड बी एम इज ऑल्सो नॉट जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। भाई ये तो सिंपल है ना, एक्स यहाँ पे अगर एन हाईएस्ट पावर है तो दैट विल बी डिग्री ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। ऐसे यहाँ एम जो है, अगर ये हाईएस्ट पावर है एक्स की, तो दिस विल बी डिग्री ऑफ दिस जी एक्स। सो वी आर एज्यूमिंग दैट लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि एफ जो है उसकी डिग्री एन है और जी एक्स की डिग्री एम है। ठीक है, सो लीडिंग कोफिशिएंट आर नॉट जीरो। So as A n and B m both belongs in the ring R, because coefficient of जो ये फंक्शन पोलिनोमियल है वो तो सारे R में ही है। That's what we are reading ना, polynomials over R। ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर R। सो ये है, और ये दोनों नोट जीरो है, दिस इज आल्सो नोट जीरो, दिस इज आल्सो नोट जीरो। इसका मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल आल्सो नोट बी जीरो, बिकॉज R इज इंटीग्रल डोमेन। ये गिवन है हमें कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो बाय दैट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एन एंड बी एम दे वॉन्ट बी जीरो डिविजर्स। ठीक है, तो ये हो गए। तो इससे तो ये चीज़ ये भी होगी ना कि अब देखो, अगर एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग, तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, ए एन इंटू बी एम, और ये हो गया एक्स की पावर एम प्लस एन सो ऑन। ठीक है, बट दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट जीरो। भाई जीरो होने का मतलब तो ये जीरो पॉलिनोमियल बनता, बट बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट आर नॉट जीरो तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो नहीं होगा ड्यू टू इंटीग्रल डोमेन प्रॉपर्टी, सो दिस इज नॉट जीरो, हेंस आर एक्स इज इंटीग्रल डोमेन, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो हमें यही तो शो करना था। हमने दो आर्बिट्ररी फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स लिए जिनके की कुछ ना कुछ डिग्री थी, हर किसी फंक्शन की एक डिग्री होगी। ठीक है, जैसे अगर एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो बोला जाए तो दिस फंक्शन की डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, पर एफ एक्स इक्वल्स टू कुछ कॉन्स्टेंट है, सो दिस इज नोन एज कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड डिग्री इसकी होगी जीरो। ठीक है, सो ये चीज़ होगी। अगर एफ एक्स मान लो कुछ और ले लो, एक्स ले लिया, सो दिस इसकी डिग्री वन हो गई। ठीक है, एंड सो ऑन, अब तो सबकी डिग्री बताई जा सकती है। और जो भी फंक्शन है, जैसे एफ एक्स में ये है ए एन एक्स की पावर एन, जो ए एन है दिस इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट।
तो अगर ये ए एन है, जो अगर यूनिटी रिंग की यूनिटी हो जाए ए एन, जैसे ये जो रिंग है एफ एक्स, ये हमारे पास रिंग है जिसमें कि एलिमेंट है ए एन, क्या कैपिटल आर में है, तो उसकी यूनिटी वन है। तो अगर ये वन हो गया तो इसको बोलेंगे फिर दिस विल बी नोन एज मोनिक पोलिनोमियल आई थिंक। ठीक है, दिस इज नोन एज मोनिक पोलिनोमियल, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, दैट टर्मिनोलॉजी इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, सो ये चीज़ है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगर आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो शो दैट रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स और दिस आर विल आल्सो बी इंटीग्रल डोमेन। सो उस केस में हमें बस यही शो करना है कि कम्यूटेटिविटी शो करनी है, यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिविजन्स। ठीक है, सो वो चीज़। अब एक चीज़ और देखो, जो हम ट्रेडिशनल जो पोलिनोमियल और इसमें जो फ़र्क है वो ये भी है, जैसे मान लो कि एफ एक्स और जी एक्स, ये दो एलिमेंट ले लिए हमने। मान लो हमारी रिंग है जेड थ्री एक्स है, ये रिंग है हमारी, मान लो ये एक्स ले लो या ये एक्स क्यूब ले लो। ठीक है, सो अगर इसमें देखो, अगर एफ जीरो, जेड थ्री क्या होती है, जेड थ्री जो होती है वो ज़ीरो वन टू ये होती है। तो जेड थ्री एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, जेड थ्री एक्स विल बी नथिंग बट ए नोर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो एन एक्स की पावर एन, ऐसे डिफाइन होगा। यहाँ पे जो एन और ए वन ए टू ये सब है, दे आर एलिमेंट ऑफ जेड थ्री, ऐसे तो डिफाइन करते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, और जेड थ्री में थ्री इज अ प्राइम, सो दिस विल बी साइक्लिक एज वेल, ग्रुप के सेंस में, बट दिस इज ए रिंग। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, ग्रुप के सेंस में वी वॉन्ट टॉक बिकॉज दिस इज ए रिंग। तो अब इसमें हमें क्या हाँ, अब देखो इसमें अगर ये देखा जाए, अगर जेड थ्री जीरो की बात करें, इसमें जैसे एफ एक्स अगर एक्स की बात करें, तो ये इसमें क्या हो गया कि कोफिशिएंट वन है, तो जेड थ्री में से आ रहा है, इसमें भी कोफिशिएंट होना है, ये भी जेड थ्री से आ रहा है। तो अगर इसमें देखो एफ जीरो की बात करें तो वो जीरो आ रही है। ऐसा करते हैं, यहाँ एफ एक्स लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जी एक्स, और यहाँ एक्स की वैल्यू लेते हैं। अगर जीरो लेंगे तो दोनों में जीरो आ गई। अगर एक्स की वैल्यू वन लेते हैं, एक्स की वैल्यू वन लेंगे तो ये तो वन हो गया, ये भी वन की क्यूब वन ही हो गया। अगर टू लेते हैं तो टू हो गया, और टू की क्यूब क्या हो गया, एट। पर एट मोडुलो थ्री है, तो क्या होएगा, सिक्स। एट माइनस सिक्स इज टू, दिस इज अगेन टू। सो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स हो गया। ये तो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जेड थ्री। ठीक है, वेयर एफ एक्स हमारे पास एक्स था और दी एक्स क्यूब था, और ये सब जेड थ्री एक्स में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर वैल्यूज़ की बात करें एफ एक्स और जी एक्स, जो कि जेड थ्री एक्स के एलिमेंट है, तो अगर पोलिनोमियल के सेंस में सोचा जाए तो दोनों इक्वल हो गए, बट दे आर नॉट इक्वल, दैट इज इम्पोर्टेंट। दे आर नॉट इक्वल इन जेड थ्री एक्स। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो एक्स होता है ना, दिस इज ए प्लेस होल्डर, दिस इज नॉट एक्चुअल पोलिनोमियल। ओके, सो जेड थ्री एक्स में दोनों इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो एफ एक्स अगर देखा जाए तो क्या आएगा, जीरो प्लस वन एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस टाइप रहेगा ये। और जी एक्स जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या, जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब, ये है, इस टाइप है। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट जो एक्स का वन है, यहाँ पे एक्स क्यूब का है, तो एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है। इनको इक्वल होने के लिए हमने देखा कि कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, जो इक्वल पावर है, मतलब एक्स की पावर आर के जो कोफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए। तो एक्स की पावर थ्री का कोफिशिएंट यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, सो कैसे इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। सो यहाँ पे एक्स इज ए प्लेस होल्डर, दिस इज लाइक सीक्वेंस देख लो या एन टपल्स देख लो, एन और ए वन ए टू, इस टाइप जो सीक्वेंस होता है वैसा ये एक्स काम कर रहा है सेपरेट करने का एन और ए वन को। ओके, सो ये बेसिक चीज़ें हो गई पॉलिनोमियल रिंग की। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर विल टेक सम गुड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ जो है इसमें क्या है कि जिन बच्चों का अभी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है एंड हु आर टारगेटिंग मेंस 2022, ठीक है, और जिन्होंने फिजिक्स पोर्शन बिल्कुल टच नहीं किया है, सो दे वर सम ऑफ देम वर आस्किंग कि क्या किया जाए। ठीक है, तो देखो
बिल्कुल भी टच नहीं किया है। एंड इफ़ यू लाइक ऑन द टाइम फ्रंट, तो व्हाट यू कैन डू कि मैकेनिक्स में जो है, मतलब फिजिक्स को छोड़ना तो नहीं है, ठीक है। तो उसके कुछ पोर्शन है, अगर पूरा हो पाए तो अच्छा है, अगर नहीं मतलब टाइम कंस्टेंट है, क्योंकि यू हैव टू बैलेंस विद जीएस एस एथिक्स, एथिक्स वो सब चीज़ें भी। तो मैकेनिक्स में जो तीन चीज़ें हैं वो तो करनी है, डी लम्बर्ट्स रूल, देन लेग्रांजेस रूल और हैमिल्टन्स रूल, ये तीनों करने ही है। इनसे क्वेश्चंस रेगुलरली आ रहे हैं, ठीक है। सो मतलब दैट हैज़ बिन द पैटर्न। सो ये तो कर लेना चाहिए, और ये आसान भी है, ठीक है। ऐसे ये फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें तो इसमें जो पाथ लाइंस हो गई, स्ट्रीम लाइंस हो गई, वेलोसिटी पोटेंशियल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सोर्स एंड सिंक, मेथड ऑफ इमेजेस, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ये चीज़ें आसान है, तो ये कर लेना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ें अगर ये इस जैसे क्वेश्चंस आजकल वैसे ही बन रहे हैं नॉर्मल से, कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से पाथ लाइन निकालना वो सब। सो ये वाला पोर्शन भी आसान है। सो दिस दिस कैन आल्सो बी कंप्लीटेड, ठीक है। ये सब मैंने लेक्चर्स में अच्छे से कवर भी कर रखा है। सो ये चीज़ है। फर्स्ट पार्ट में स्टैटिक और डायनेमिक्स की बात करें तो उसमें जितने भी पोर्शन कराया वो सब पीवाईक्यू बेस्ड वही चीज़ें हैं जो ज़्यादातर पूछी हुई है। तो वहाँ पे कैटनरी हो या वर्चुअल वर्क हो या स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम हो, सेंट्रल ऑर्बिट हो, प्रोजेक्टाइल हो, कांस्टेंट मोशन हो, वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो वो चीज़ है। और ये चीज़ है कि मेक इट अ प्रैक्टिस इनफेक्ट, और मेक इट श्योर कि पी वाई क्यू जो है वो करनी ही है। 2010 से 2021 तक के सारे टॉपिक्स के पी वाई क्यू करने हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ए मस्ट, ठीक है। अब जैसे एक ये भी है कि मॉडर्न अलजेब्रा जो है उसमें बहुत लोगों की ये क्वेरी है कि उनने अच्छे से नहीं कर पाए उसको, तो क्या किया जाए। तो ठीक है, इसमें भी जो बेसिक पोर्शन है वो तो कवर कर ही सकते हो, जैसे ग्रुप थ्योरी होगी, रिंग का जो बेसिक पोर्शन है, जैसे जो मैंने अभी तक इसमें करवाया, तो वो चीज़ देख सकते हो, और इसके पीवाई क्यू फिर अच्छे से कर लो, ठीक है, ताकि जो इजी क्वेश्चन आए वो तो ना छूटे। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, सो विल डिस्कस more questions based on it. So till next, bye bye, take care.